ईरान और यूएसए की नेगोशिएशन चल रही है, ठीक है जी। वहीं पर जी स्टीव विटकॉफ ने जो है आज इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर जो है उन्होंने बहुत सारी बातें की। उसके बाद जो है इजरायली मीडिया भी बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है। इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रम्प साहब जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है और नेगोशिएशंस कहीं नहीं जा रही और उन्हें जो है वो सेनेटर्स ने कहा है कि जी आप स्ट्राइक करें, ठीक है जी। ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन पहले जो है वो आप स्टीव विटकॉफ की बात सुनिए, फिर आगे चलते हैं। I know that we have red lines here from the U.S. How about over with Iran? The president asked me that this morning, and I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. Why under this sort of pressure, with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon, so here's what we're prepared to do, and yet it's hard to sort of get them to that. ठीक है जी। तो स्टीव विटकॉफ साहब ने कहा कि जी कि फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी है कि अभी तक हम जो है चीज़ें क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, ये प्रेशर क्यों नहीं बन रहा। हमने जो है वो इब्राहिम लिंकन एक तरफ भेजा हुआ है, दूसरा जो है फाइटर जो है वो बहरी जहाज भी भेजा हुआ है। तो जो है हम किसी तरह जो है नेगोशिएशन अपने फायदे के अंदर क्यों नहीं ला पा रहे, ठीक है। तो ये एक तरफ फ्रस्ट्रेशन है कि स्टीव विटकॉफ साहब ने कहा। वहीं पर टकर कार्लसन के जो है वो इंटरव्यू के अंदर जो है वो कुछ बातें हुई। यूएस एम्बेसडर हैं जी, यूएस एम्बेसडर टू इजराइल माइक हुकाबी टेल्स टकर कार्लसन दैट इजराइल हैज बिब्लिकल राइट टू टेक ओवर ऑल द मिडिल ईस्ट, ठीक है जी। तो ये आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि जो इजराइल कहता है कि जी हमारा जो हक है गाजा के ऊपर, हमारा जो हक है यरूशलेम के ऊपर, ठीक है जी। तो उनके जो एम्बेसडर हैं, यूएस एम्बेसडर टू इजराइल, उन्होंने एक बात की आज जिसके ऊपर जो है पूरी दुनिया के अंदर पूरे जो है 12 घंटे से बवाल मचा हुआ है। जरा वो देखिए, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है ये, और इससे आपको पता चलता है कि चीजें कहां पर जा रही हैं। जरा सोचिए, जरा देखिएगा। You've appealed to Genesis. Genesis 15 says it's Abram, it's pre-Abraham, it's Abram, receives from God the news that his descendants will inherit the land. And you tell me as the theologian if I'm getting this wrong, but from the Euphrates to the Nile. I think that's right. And that would include like basically the entire Middle East. That would be the Levant, so that would be Israel, Jordan, Syria, Lebanon. It would also be big parts of Saudi Arabia and Iraq. It would be, I mean, I'm not sure it would go that far. I mean, it would be a big piece of land, but here's the point. It would be a lot of places that are now countries. That this particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. Christian Zionism, I want to go back because that's where we started. I'm not going to let you off on this because you have said it 3 times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. Because you're appealing to Genesis. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. It will be fine if they took that all. का क्या मतलब है सही? तो ये मतलब है कि जी टकर कार्लसन ने उनसे सवाल किया कि बाइबल के मुताबिक जो है वो ज्यूज का ये बिलीफ है कि इन शॉर्ट कि वो पूरे मिडिल ईस्ट को जो है वो एक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है जी। जो है वो उन्हें गॉड की तरफ से गिफ्ट किया गया। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब उन्हें थोड़ा सा काउंटर किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर मिल जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो ये उनका कहना था। पूरे जो है मिडिल ईस्ट के अंदर आज जो है इस बारे में बात होती रही, ठीक है जी। This is actually the correct view of Judaism. The traditional Jews' view is not that they are entitled to Israel plus Gaza plus West Bank as homeland, and that they must exterminate non-Jews in this area. Rather, it is that they are entitled to all the land between Nile and Euphrates as a homeland. ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि जी पूरे मिडिल ईस्ट अगर मिल जाए तो कोई उसमें मसला नहीं। वहीं पर जी CNN क्या रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, पहले ये देखते हैं। अरब एमिरेट्स ने जो है वो और पाकिस्तान ने जो है आज इस पर जो है वो निकाली एक प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने ये कहा कि जी हम सब जो है मिलकर, कौन कौन सी कंट्रीज मिलकर जी, मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ UAE, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और लेबनान और सीरिया जो है मिलकर जो है वो जो ये बातें हुई उनको उन्होंने कहा कि जी हम कंडेम करते हैं। They affirm their country's categorically rejection of such dangerous and inflammatory remarks, which constitute a flagrant violation of the principles of international law and the Charter of United Nations. ठीक है जी। तो UAE ने जो है वो कहा है कि हम जो है वो इसको रद्द करते हैं, हम जो है वो इसको जो है वो ये जो है वो इस यूनाइटेड नेशन की जो है वो चार्टर के खिलाफ है। वहीं पर पाकिस्तान ने भी जो है वो प्रेस रिलीज निकाली। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी जो है सेम जो है कॉपी पेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जी ये सारे कंट्रीज जो है उसमें हम भी हैं, affirms the countries categorically rejection of such dangerous and inflammatory remarks। तो उन्होंने भी जो है अपनी तरफ से ये जो है वो प्रेस रिलीज निकाली कि हम जो है इसको भी कंडेम करते हैं। तो चीज़ें आप देख लीजिए कि अब कहाँ जा रही हैं, चीज़ें जो हैं वो इस तरफ जा रही हैं। और वहीं पर जो है वो इजरायली मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है Khamenei planning for assassination scenario appoints Lajani, ठीक है जी। फिर वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल टाइम्स ऑफ इजराइल ये रिपोर्ट कर रहा है, लीडिंग GOP senator urges Trump to ignore advisors opposing Iran strike, ठीक है जी। UN senator Lindsey Graham, a Southern Californian Republican,
is urging President Donald Trump to press ahead with military actions against Iran, warning against advisor counseling restraint as the White House weighs its options. ठीक है, I understand concerns. उन्होंने क्या कहा जी? I understand the concerns about major military operations in the Middle East given past entanglements. However, the voices who counsel against getting entangled seems to ignore the consequence of letting evil go unchecked. ठीक है जी। तो इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो है सेनेटर्स जो हैं वो लिंडसे ग्रैहम, उन्होंने उनका नाम लिया, लेकिन हमें ये पता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ होल लॉबी बिहाइंड जो कि चाह रही है कि नेगोशिएशंस कहीं ना बैठे, और आपको पता है कि नेगोशिएशंस कहीं नहीं बैठे। ठीक है, जो स्टीव विटकॉफ के आपके जो इंटरव्यू के सामने कि उन्होंने जो कहा है कि देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है जी, देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन कि हम जो है इतना प्रेशर भी डाल रहे हैं और जो है वो नेगोशिएशंस फिर भी नहीं हो रही, हमारे हक में नहीं आ रही। ठीक है जी। वहीं पर जो इजरायली मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि सुप्रीम लीडर जो है अली खamenei जो है वो असैसिनेशन प्लानिंग में जो है वो चले गए। ठीक है जी। और आपको पहले ही पता है कि वो टनल्स के अंदर जो है वो अपनी मूवमेंट ज्यादा कर रहे हैं ताकि जो है वो स्ट्राइक ना की कर सके। ठीक है जी, यूएस उनके ऊपर। ठीक है जी। तो वेरी शॉकिंग न्यूज़, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से बदल रही हैं यूएस ईरान के अंदर। ठीक है, तो हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें सोचनी रहेंगी कि हम कहाँ पर खड़े। तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है अभी लंदन वापस आए और जो है वो उसके बाद अफगानिस्तान की स्ट्राइक्स होगी। ठीक है जी, हमें वहाँ से तक की मिली, हमने उनको कहा कि हम ये करने वाले हैं, और जो है अगले दिन जो है अफगानिस्तान पर स्ट्राइक्स होगी। अब जो है यूएस सोच रहा है कि शायद चीज़ें जो जहाँ पे जा रही हैं वो कि स्ट्राइक की तरफ ही जाएंगी, जो हमने आपको पहले बताया था कि ग्राउंड अब शायद रेडी होने वाला है, ग्राउंड जो है वो रेडी होने वाला है, और जो है वो चीज़ें जो है वो तेज़ी से बदलेंगी। और ये कोई आउट ऑफ ब्लू नहीं है कि स्टीव विटकॉफ सामने आए हैं, एम्बेसडर साहब सामने आए हैं और उन्होंने ये बातें की। ठीक है जी। सो जो है आपको नब्ज़ का पता चलता है कि ये चीज़ें कहाँ जा रही। ठीक है जी। तो ये थी यूएस ईरान से खबरें।